ایک فیمیل پہنچی بلغتا، وہ دو فیمیل پہنچے بلغنا ساری فیمیل پہنچے بلغتا ان دو بلغتا تو یو ریچ یو آر ریچ یو ریچڈ آپ نہیں آتا یو ریچ جی یو ریچ پہنچے بلغتما یو آل ریچ نہیں بلغتما بولے تو تم دونوں مرد اوکے you two reached بلغتم you all reached میسکولائن بولنا جی masculine فیمیل کے لیے بلغتی you reached بلغتما you all reached بلغتنا you all reached female. سر فیمیل اور میل ایک بار پلیز ریپیٹ کروا دیجیے. آپ ہی کر دیجیے. سر نہیں مجھے کنفیوژن ہے میں نہیں کر سکتا. اچھا کوئی مدد کیجیے. فیمیل یعنی کہ مؤنث. نہیں وہ بلغتما جو ہے نا وہاں پر مجھے پریشانی ہو رہی. جی بلغتا میل کے لیے ہے بلغتا میل کے لیے نہیں بلغنا کے بعد پھر سے بلغتا بولے نا. جی عورت کے لیے ہے. نہیں میل کے لیے ہے بلغتا. بلغتی آیا تو فیمیل کے لیے. اچھا بس یہی تھا مجھے پرابلم. کلیئر ہوا سر. اور وہ جو بلغتم ہے بلغتم کا مطلب جو ہے فیمیل میل پلورل. میل پلورل. اچھا ٹھیک ہے. جی فیمیل کے لیے بھی وہی ہے سیم پلورل. ہاں نہیں ہوتا. تسنیہ میں ہے تما میں ہے وہ. جی تما میں دونوں سیم ہیں. ہاں تم اور تمنا ہے. تم مرد پہنچے بلغتنا تم سب عورتیں. اگر میرے سامنے مرد ہے تو میں کہوں گا تم سب لوگ پڑھے. لیکن اگر عورتیں ہیں تو میں کیا کہوں گا جی بلغتنا. بلغتنا. اوکے. تو سر بلغتم جو ہے سارے مرد پہنچے. سارے مرد پہنچے. ہاں اور بلغتنا ہو گیا ساری عورتیں پہنچے. ساری عورتیں وہ بھی کون سے مرد اور کون سی عورتیں جو ہمارے سامنے ہیں. اچھا سیکنڈ پرسن. ٹھیک ہے سر یہ اس کو دونوں یاد میں رکھیے. سیکنڈ والا بولیے سر. سیکنڈ والا دونوں میں بھی سیم آ رہا نا سر. کون سا ایک منٹ جی. بلغتما. یہ سر بلغتما یہ میل میں آ رہا. فیمیل میں سر کیا ایک بار آپ اسکرپٹ لکھ کے دکھا دیجیے. وہ یہ سیم ہے بلغتما دونوں میں سیم ہے. اوکے. یس سر آپ ایک بار اسکرپٹ لکھ کے دکھائیے. میں تو دکھانے والا ہوں. میں آپ لوگوں کو ٹیسٹ کر رہا ہوں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کتنا حل کر دیں. آخر میں تو میں ہی کروں گا میرے کو بھی معلوم ہے. چلیے اب دیکھیے یہاں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سہل یا الہی کل صاحب سید الابرار اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک. ایک بار درود شریف پڑھ لیجئے مشکلیں آسان ہوتی. صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. چلیے یہاں پہ دیکھیے میں کچھ آپ لوگوں کے لیے ویب سائٹ کھولا ہوں تو میں جو ہے اس کو کھول لیتا ہوں. یہ آپ کو ویزیبل ہے؟ جی یس سر. نام سر. پورا ویزیبل ہے یہ؟ نام سر. نام سر. نام. تو اب یہاں پہ دیکھیے یہ ہے پہلا کتبہ. ٹھیک ہے. کتبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس ایک مرد نے لکھا. ہی روٹ. اسی کو ہم کو ڈویل فارم میں بنانا ہے تو ہم صرف الف ایڈ کر دیں گے کتبہ. ہم کو اسی کو پلورل بنانا ہے تو واو الف ایڈ کر دیں گے لاسٹ میں کتبو. ٹھیک ہے. یہ تین جو ہے میسکولائن کے لیے ہے تھرڈ پرسن. جی نام سر. یہاں پہ دیکھیے آپ ہوا کا مطلب ہوتا ہے ہی. ہما کا مطلب ہوتا ہے دے ٹو. ہم کا مطلب ہوتا ہے دے آل. ٹھیک ہے. جی سر. تو اس کے اندر یہ چھپا ہوا ہے ہوا. کتبہ کے اندر ہما چھپا ہوا ہے. کتبو کے اندر ہم چھپا ہوا ہے. اسی لیے تو ہم ترجمہ کرتے وقت کیا بول رہے ہیں وہ سب لکھے. وہ سب کہاں سے آیا؟ وہ سب جو ہے یہ واو الف کی وجہ سے آیا.
और इन्हें सब्स्टिट्यूट है किसका, ये हुम का, ठीक है। तो नाम सर। अरबी में जो है ये जो दिख रहा है आपको रेड कलर में, जो मैं जहाँ पे मेरा कर्सर घुमा रहा हूँ, इसको कहते हैं ज़मायर, प्रोनाउन कहते हैं इसको, जी नाम से। ठीक है। तो ये प्रोनाउन जो है देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 जो है ज़मायर होते हैं, और उसी के हिसाब से फेल के जो सेगे होते हैं वो भी 14 होते हैं। आप यहाँ पे गिन लीजिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, जिसमें से 12 हम पढ़ लिए। अब खाली ये दो लास्ट के दो पढ़ना है हमको, कतबतु कतबतु कतबना, तो उसको छोड़ दीजिए, पहले ऊपर आ जाइए। सर हुआ सिंगुलर है सर, जी हाँ, हुआ सिंगुलर है। मेल के कतबत में जो है फीमेल है, कतबत का मतलब होता है वो लिखी, वो एक औरत, कतबता वो दो औरतें लिखी, कतबना वो सब औरतें लिखी, कतबता तू एक मर्द लिखा, ता जबर ता, कतब तुमा ये सेम है देखिए, तो ये दोनों भी फीमेल, मेल और फीमेल दोनों के लिए बराबर है, एक ही सेगा है, कतब तुमा, तुम दो मर्द लिखे, तुम दो औरतें लिखी। कतब तुम, ये अंतुम जो है, अंतुम का जो है ते मीम पेश तुम ले लेते, कतब तुम सब लिखे। कतबती, अंती बोले तो एक औरत को बोलते हैं ना, यू फीमेल। ये देखिए डिस्टरबेंस फिर शुरू हो गया, अल्लाह हिदायत दे हम सबको। कतबती तू एक औरत लिखी, कतब तुमा तुम दो औरतें लिखी, कतब तुन्ना तुम सब औरतें लिखी, ठीक है। अब सेम जो है अगर आपको देखना है तो आप इसमें देखिए, अगर आपको दिख रहा है शरीबा, मैं इसको थोड़ा सा जो है ये देखिए, शरीबा शरीबा शरीबू शरीबत शरीबता शरीबना शरीबता शरीबतुमा शरीबतुम शरीबती शरीबतुमा शरीबतुन्ना शरीबतु शरीबना, ठीक है। शरीबतु ये दो सेगे हम आज पढ़ने वाले हैं। इस फेल के आखिर में अगर आप ता पेश तू लगा देंगे तो मैं, नून अलिफ जबर ना लगा देंगे तो हम, ठीक है। तो अब आप मेरे को बोलिए कि अकला है, अकला में हम जो है अगर हमको बनाना है मैं खाया, तो हम कैसा बनाएंगे, अकल टू, अकलतु बलगा में हमको बनाना है तो कैसा बनाएंगे, बलगतु बलगतु। और ये याद रखिए कि ये जो तीसरा वर्ड है ना वो साकिन होना, अगर साकिन नहीं हुआ तो गलत हो जाता। साकिन का मतलब जज़म, बलग बलग, बलगातु नहीं बोलना, बलगातु नहीं बोलना, बलगतु। अच्छा इसी तरह आप मेरे को बोलिए कतबा से क्या होगा, कतबतु कतबतु कतबतु, इसका मतलब क्या होगा, आई रोट, मैं लिखा, ठीक है। अच्छा नज़रा से आई सी, आई हैव सीन या आई सॉ बोले तो कैसा बोलेंगे, नज़रतु, ठीक है। इसके बाद जो है और एक जो है नसरा, मदद करना, नसरतु मीनिंग क्या होगा, I helped मैंने I saw मदद किया। इसी तरह मेरे को बोलना है कि मैं बैठा, जलस्तु ठीक है, जलस। नाम सर। अब इसमें जमीर क्या पोशीदा रहती, अना का मतलब मैं होता ना। नाम सर। तो अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ कि मेरे पास एक फेल है, जलसा फेल है, और मेरे को उसको क्या करना है, अना जमीर के साथ बोलना है, तो मैं कैसा बोलूंगा, जलस तू,
ठीक है, अना की जरूरत नहीं है, ये ता पेश है, अना का जो है सब्स्टिट्यूट है। जी सर। ठीक है, तो इसी तरह देखो आप बोलिए वसला प्लस अना, मैं कैसा बोलूंगा? वसलतु वसलतु। ठीक है, इसी तरह समीअ एक फेल है जिसका मतलब है सुनना। समिअतु सर समझ में आया? वसल का मायने क्या है? जी, वसला का मतलब भी पहुंचना, रीच। ठीक है, समीअतु का मतलब आई हर्ड, मैंने सुना। उस्ताद इस शरीफा से जी फरीहा। हाँ, फरीहा से बोलिए, आप ही बोलिए। फरीहतु। बिल्कुल, तो क्या मतलब होगा उसका? मैं खुश हुई। मैं खुश हुई या मैं खुश हुआ? मैं मैं खुश खुश हुआ या हुआ। दोनों भी खुश हुई। बोल रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। मैं खुश हुआ के लिए भी वही है, मैं खुश हुई के लिए भी वही है, क्योंकि पहले आदमी को जो है बोलने की जरूरत नहीं रहती कि मैं मर्द हूँ या मैं फीमेल हूँ, आप देख के समझ जा सकते हैं। ठीक है, नाम से। नाम से। आगे बढ़े। नाम सर। नाम सर अल्हम्दुलिल्लाह। फरिहतु कसीरन, कसीरन बोले तो बहुत। फरिहतु कसीरन का मतलब क्या होता है? खुश हुई। सर फरिहतु का मतलब पास्ट टेंस में आता है सर। आई बहुत खुश आता हुआ। है, आई वाज हैप्पी आता है सर। अब जो भी आता है इंग्लिश में, उसमें उर्दू में उसका तर्जुमा होगा मैं बहुत खुश हुआ। मैं बहुत खुश हुआ। ओके सर। बोल सकते हैं आप आई वाज आई एम हैप्पी। was very happy. आई वाज वेरी हैप्पी, या आई मतलब जो है आई एम विद योर एफर्ट्स, ऐसा भी कह सकते हैं। फरिहतु कसीरन, मैं बहुत खुश हुआ, आई एम वेरी हैप्पी। ये आ गया आपको। अब जो है फरीहा से ही करेंगे। फरीहा से जल्दी जल्दी मेरे को बोलिए गर्दान। फरीहा वो खुश। फरीहा 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 फरीहू नहीं, मीनिंग के साथ। फरीहा खुश हुआ। उस एक मर्द खुश एक हुआ। मर्द वेरी खुश हैप्पी। हुआ। हाँ, एक मर्द खुश हुआ। खुश हुआ। फरीहा हाँ, मर्द वो खुश दो हुए। मर्द खुश हुए। फरीहू उस सब मर्द खुश हुए। वो फरीहता सब मर्द खुश हुए। वो सब मर्द खुश हुए। बोलते रहिए। फरीहता वो सब मर्द खुश हुए। हाँ, फरीहत फरीहत वो एक औरत खुश हुई। फरीहता वो दो औरतें खुश हुई। फरिहता वो दो औरतें खुश हुई। वो सब औरतें खुश हुई। फरीहता फरिहतना आप एक मर्द खुश हुए। फरीहतुमा आप दो मर्द खुश हुए। फरीहतुम आप सब मर्द खुश हुए। फरीहती आप एक औरत खुश हुई। फरीहतुमा आप दो औरतें खुश हुई। फरीहतुन्ना आप सब औरतें खुश हुई। और अब एक हम बढ़ाए ना आगे एक वर्ड। फरीहतु फरीहतु मैं खुश हुआ। मैं खुश हुआ। मैं खुश हुआ, बहुत अच्छा। आयशा सदफ पढ़े हैं, ये बहुत प्यारा पढ़े हैं। फरीहतु तक हम आ गए हैं। अब एक लास्ट बचा है, वो है फरीहा। ठीक है, फरीहना। इसका मतलब होता है वी ऑल आर हैप्पी, वी हैप्पी, वी वर हैप्पी, वी वर हैप्पी। पास्ट टेंस में बात करें हम उर्दू में ये नहीं बोल रहे कि मैं खुश हुआ था के लिए नहीं है, बस अभी के लिए भी अगर मैं खुश हूँ बोलना है तो भी हम फरिहना इस्तेमाल करेंगे। नाम सर। जैसे एक फ्रेज मैं आपको बोलता हूँ याद रखने के लिए, फरिहतु बिलिकाइका या फरिहतु अला बिनजाहिका। बिनजाहिका बोले तो बी का मतलब होता है यहाँ पे विद, नजाही नजाहुन कहते हैं कामयाबी को, का मतलब आपकी। मैं आपकी कामयाबी से खुश हुआ। मैं आपकी कामयाबी से खुश हुआ। अगर फीमेल है तो मैं आपकी कामयाबी से खुश हुई। फरीह तो भी जनाबी की। बी नजाही की, नजाही की।
नजाहुन कहते हैं कामयाबी को, नजाहुन विक्ट्री, या क्या बोलते हैं उसको, कामयाब होने को क्या बोलते हैं? सक्सेसफुल सक्सेस। ठीक है, नाम से फरिहतु बी नजाहिकी या बी नजाहिका। सर सुरीरतु सुरीरतु भी सेम है, सुरीरतु भी सेम है। और अगर मैं टेक्निकली बोलूं तो आपको सुरीरतु ज्यादा सूट करता है, मैं सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे ये लिखा। ठीक है, आपको हदीस में मिलेगा, आपको एक मिनट, हदीस में आपको मिलेगा फरिहबी रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब फरिहा का मतलब खुश होना, बी बोले तो ये या है, ये मुझसे, खुश हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझसे हमारे हुजूर खुश हुए। हाँ, कोई सहाबी आपको हदीस में बोलते हुए दिखेंगे कि फरिहा बी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझसे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हो गए एक बार। मतलब मैं कुछ ऐसा काम किया या मेरी कोई आदत एक ऐसी मुलाहजा हुजूर फरमाए कि जिसकी वजह से हुजूर को क्या हो गई, खुशी हो गई। ठीक है, तो ये लफ्ज आता है। अब मैं लास्ट जो है मैं मेरी तरफ से लिख रहा हूँ, अगर आप लोग आवाजें नहीं करते तो म्यूट नहीं करता हूँ, आवाजें करते तो म्यूट कर देता हूँ। क्या करूँ बोलिए? इंशाल्लाह नाम से आवाज नहीं करेंगे, आवाजें नहीं कर नाम क्या उस्ताद? इंशाअल्लाह, लेट्स सी आप लोग कितना कायम रहते हैं उस पे। पढ़ना सर, ये मैं लिखे मत पढ़ना, लेकिन वॉयलेशन अभी से शुरू हो गया। देखिए, कतबत कतबता Guys, you can mute yourself. सही है मशवरा कि आप अपनी तरफ से तो म्यूट कर दीजिए, जब आपको बोलना हो जब अनम्यूट कर दीजिए। ये जो है हमारा फेल का जो है मुकम्मल गर्दान है, जिसको हम कहते हैं तसरीफ। अरबी में इसको क्या कहेंगे? तसरीफ। तसरीफ तसरीफ, तसरीफ। तसरीफ का मतलब क्या होता है कि आप किसी जो है फेल को घुमाना, कभी जो है सिंगुलर बोलना, कभी प्लूरल बोलना, कभी सेकेंड पर्सन, कभी थर्ड पर्सन, कभी फर्स्ट पर्सन, इसको कहते हैं तसरीफ। और बैंक को जो है इसी से कहते हैं अल-मसरिफ। अल-मसरिफ क्यों मतलब कहते हैं बैंक को? क्योंकि उसमें जो है पैसा घुमाया जाता है, इधर से उधर, उधर से उधर। 8 वाला कतब तुमा है सर जी, 8वां सहेगा कतब तुमा, कतब ता के बाद ठीक है, जज़ाकल्लाह। कतब तुमा, कतब तुम। तो ये हमारा फाइनल जो है माजी का सेगा है। कतबा उस एक मर्द ने लिखा, कतबा उन दो मर्दों ने लिखा, कतबू उन सब मर्दों ने लिखा, कतबत वो एक औरत लिखी, कतबता वो दो औरतें लिखी, कतबना वो सब औरतें लिखी, कतबता तू एक मर्द लिखा, कतबतुमा तुम दो मर्द लिखे, कतबतुम आप सब मर्द लिखे, कतबती आप एक औरत ने लिखा, कतबतुमा आप दो औरतों ने लिखा, कतबतुमना आप सब औरतों ने लिखा। अब दो के बाद लोग तीन बोल रहे हैं तो फिर चार के लिए अलग बोलना पड़ता, तो इसीलिए हम क्या करें, दो के बाद तीन रहने दीजिए, 3 करोड़ रहने दीजिए, 3 बिलियन रहने दीजिए, या उसके आगे रहने दीजिए, हम सिर्फ बोलेंगे कतबतुन्ना। ठीक है, दो के बाद तीन नहीं आता, दो के बाद जो है अरबी में जितना चाहे उतना आता है, जमा। कतबतु मैं लिखा मर्द भी, मैं लिखा औरत भी, और कतबना हम लिखे मर्द भी औरत भी। आप ये नोट कीजिए कि ये जो फर्स्ट पर्सन है इसमें डुअल फॉर्म नहीं है। अरबी में फर्स्ट पर्सन में डुअल फॉर्म नहीं है, बाकी सब में डुअल फॉर्म है। देखिए ये डुअल फॉर्म है, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। कतबतुमा
फिर ये लास्ट कतबतु। कतबतुमा, ये दो जो है मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के लिए सेकेंड पर्सन में है। उसके बाद पहला वाला जो है कतबा, सेकेंड थर्ड पर्सन डुअल मेल के लिए, कतबता थर्ड पर्सन फीमेल डुअल। इससे याद रखिए। अब आपको क्या करना है, इसको याद करना है अच्छे से। एक बार पढ़ा दीजिए ना सर। एक बार पढ़ लीजिए आप, यहाँ आपके स्क्रीन पे है ना, ये पढ़ लीजिए आप। कतबु कतबत कतबता कतबना कतबता कतबतुमा कतबतुम कतबती कतबतुमा कतबतुना कतबतु कतबना। चलिए पढ़िए मेरे साथ। कतबा कतबा कतबू, कतबू, एक साथ। कतबत कतबता कतबना, कतबना। थोड़े लोग यहाँ पे गलती कर रहे हैं, कतबता बोल रहे हैं, गलत हो जाता है। कतबता कतबता कतबना। उसके बाद कतबता कतबतुमा कतबतुम, कतबतुमा कतबतुम, तब्ती कतबतुमा कतबतुन्ना, कतबना। कतबतु कतबना। Conjugation. तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जी और मैं ले अब लिया। जो है जितने भी फेल लिखे हैं ना, वो सब पे आप लोगों को प्रैक्टिस करना है, चाहे वो बलगा हो, अकला हो, फरीहा हो, जलसा हो, या फिर जो है क़राअ हो, शरीबा हो, और क्या था, ज़रबा हो, समिआ, फहीमा, जलसा नज़रा रफ़अ रफ़अ बुलंद होना, बुलंद करना, फतहा फतहा खोलना, ज़हबा जाना, बहुत अच्छा। उस्ताद जी खराजा का मीनिंग क्या है? खराजा खराजा वेंट आउट, एग्जिट, टू गो आउट, कहीं से निकल जाने को खराजा कहते हैं। चलिए अब इसके बाद जो है अब मेरे को आज जो आपको बतलाना है कि ये तो माजी का हो गया। माजी का मतलब होता है पास्ट टेंस। पास्ट पास्ट टेंस। अब आज हम जो है शुरू करने वाले हैं मुदारि, अल मुदारि। ठीक है, अल मुदारि का मतलब क्या होता? प्रेजेंट एंड फ्यूचर। अरबी में जो है प्रेजेंट टेंस अलग और फ्यूचर टेंस अलग नहीं है, बल्कि अरबी में डायरेक्ट जो है फ्यूचर, प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों एक ही वर्ड में होता है। आपको कॉन्टेक्स्ट बतलाता है कि वो प्रेजेंट के लिए है या फ्यूचर के लिए। आगे पीछे जो भी रहता उससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि ये चीज हाल के लिए बोली जा रही है या मुस्तकबिल के लिए बोली जा रही है। हाल का मतलब अभी फिलहाल, मुस्तकबिल का मतलब आइंदा आने वाला। तो अब हम क्या करेंगे, आपको मैं एक सिंपल वर्ड बतलाता हूँ कि जहाँ पे आप ये मालूम कर सकते हैं कि ये माजी है या मुजारे है, ये पास्ट टेंस है या फ्यूचर टेंस है। मुजारे के जो है 4 साइन है, अगर वो साइन में से कोई एक साइन भी आ गया तो समझ जाना कि मुजारे है। पहला साइन क्या होता है? वो पहला साइन ये होता है कि उस पे या जबर या आता है। पहले शुरू में क्या आता है? बोलिए, या जबर या, या जबर या। या ज़बर। अब आज जो हम आपको कन्वर्सेशन पढ़ाने वाले हैं उसमें जो है कुछ वर्ब्स आए हैं, वो सारे के सारे वर्ब या तो या से शुरू हुए हैं, दूसरा जो है ता से शुरू हुए हैं। उसका पहला वर्ड या तो या है या तो ता है, या और ता। ठीक है, तो या जो होता है ये पहले याद रखिए कि ये जो है थर्ड पर्सन मेल के लिए होता है। थर्ड पर्सन मेल मतलब सबके लिए? नहीं, सिंगुलर। ओके, ठीक है, और ता जो होता है ये जो है सेकेंड पर्सन मेल, सेकेंड पर्सन
मेल। अभी हम जो है आपको ये आसानी के लिए मैं बोल रहा हूँ, नेक्स्ट आगे चल के इसमें जो है थोड़ी सी तब्दीली होगी। सेकेंड पर्सन मेल सिंगुलर, ठीक है। तो अब आपको जो है हिवार में एक वर्ड आने वाला है यतवद्दउ। कोई गेस कर सकते हैं इसका मीनिंग क्या होगा? हाँ, यतवद्दउ, इसमें कोई ऐसा वर्ड है जो हम रोजाना इस्तेमाल करते हैं? वेरी गुड, वضू, वضू। तो यहाँ पे सर ये मैं वजू की दुआ है शायद ना, या तवज्जउ लिल फाइल हद। हाँ है, वो इसी में है, मैं अभी बोल रहा हूँ आपको। तो इसमें जो या आ रहा, देखिए ये या जो है ये बतला रहा है कि ये पहला तो ये क्या है, मुजारे का सेगा है। मुजारे का मतलब जो प्रेजेंट और फ्यूचर को बतलाए। सेकेंड चीज, ये या जो है ये बतला रहा है कि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए है। इसका मतलब क्या है, वो वजू कर रहा है। नाम सर, नाम। ठीक है। अब इसी को मैं सिर्फ कोई चेंजेस करे बगैर या को अगर ता में कन्वर्ट कर दूं और मैं कहूं ततवद्दउ, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बोलिए? आप वजू कर रहे हैं। वो तो वजू कर रहे हैं। आप आप वजू कर रहे हैं। और इसमें अगर मैं हमजा लगा दूं, पहले हमजा लगा दूं, तो इसका मतलब होता है मैं वजू कर रहा हूँ। मैं वजू कर रहा हूँ। कर रहा हूँ या कर रही हूँ, दोनों है। कर रहा हूँ, मेल। मेल और फीमेल के लिए भी वही है। ओके ओके सर। दोनों के लिए। अब सेम मैं अगर आपको बोला कि यफ्तहु, फतहा मतलब वो खोला, टू ओपन। ठीक है, वो जो है वो एक मर्द खोला, तो यफ्तहु का मतलब क्या होगा, बोलिए? उसने खोला। नहीं, वो आपने खोला। खोल रहा है। वो खोल रहा है। खोल रहा है। और इसमें और एक मीनिंग क्या होता, वो खोलेगा। मतलब वो बुक खोल रहा है या बुक खोलेगा। यफ्तहु अल किताबा, ठीक है। यंसुरु, नसरा का मतलब क्या था, वो उसने मदद किया, पास्ट टेंस में था। वो मदद करेगा, तो वो मदद कर रहा है या करेगा। दोनों में मीनिंग आता है, डिपेंड करता है कि हम किस में इसको यूज करने वाले हैं। नाम सर, समझ में आया? कतबा का मतलब था उसने लिखा। अब मैं या के साथ अगर लिख दूं, वो लिख रहा है या लिखेगा? लिख रहा है या लिखेगा? लिख रहा है या लिखेगा। अच्छा, अब यक्तुबु है ना, आप लिख रहे हैं या लिखेंगे, कैसा बोलूंगा मैं? अक्तुबु। आप लिख रहे हैं। तक्तुबु, तक्तुबु। अक्तुबु। ता के साथ बोलेंगे हम, तक्तुबु। मैं लिख रही हूँ। मैं नहीं, यू। अच्छा, वो लिख रहे हैं, आप लिख रहे हो। यू आर राइटिंग। विल राइट, दोनों भी आता है। यू विल राइट। अच्छा, मेरे को बोलना है मैं लिख रहा हूँ, मैं लिख रही हूँ, या मैं लिखूंगी। अक्तुबु। तक्तुबी। अक्तुबु लास्ट को जो है पेश आएगा। अक्तुबु का मतलब क्या होता है, मैं लिख रहा हूँ या लिखूंगा। या लिख रही हूँ भी आता, या लिखूंगा। मेल फीमेल दोनों के लिए है ये। नाम सर। ठीक है। अच्छा, अब मेरे को बोलिए, नज़ारा का मतलब था देखना। नजर तो नज़ारा का मतलब है देखना। और अगर आप पास्ट टेंस में बोलेंगे, नजर तू मतलब मैं देखा। ठीक है। मेरे को अगर मुजारे में बोलना है तो मैं क्या करूंगा, या लगाऊंगा, यंजुरु। यंजुरु का मतलब क्या होता है, वो देख रहा है। देख रहा है या देखेगा। देखेगा। आप देख रहे हो, मर्द के लिए बोलना है तो मेरे को क्या बोलूंगा मैं?
तंजुरु अंजुर ठीक है। नाम तंजुरु, मैं देख रहा हूँ के लिए क्या बोलूंगा मैं? अंजुर अंजू अंजुरु अंजुर अंजुरु। क्लियर है यहाँ तक? नाम सर नाम से सबको नाम से मैं देख रहा हूँ, और इसमें फीमेल भी आ जाता, या देखूं, देख रही हूँ मैं देख रही हूँ या मैं देखूंगी, ये दोनों भी आ जाता है। अच्छा, समीआ, यस्माउ यस्माउ जो है उसका मुजारे आता है, वो सुन रहा है या सुनेगा? सुन रहा है या सुनेगा। सुन ही इज लिसनिंग और विल लिसन। चलिए, आप यू आर लिसनिंग और लिसन अस्समीउ नहीं, नहीं तस्मीउ तस्माउ आई विल लिसन और तस्माउ, आई एम लिसनिंग यू यू विल लिसन यू आर लिसनिंग और यू विल लिसन और यू विल लिसन चलिए, मैं आई अस्समाउ अस्माउ अस्मा अस्माउ अस्मा, क्या मतलब होगा? आई एम लिसनिंग और आई विल लिसन आई एम सुनूंगी या लिसनिंग या आई विल लिसन आई विल लिसन। क्लियर है? नाम से नाम सर नाम तो आपको सर आपको क्या करना देखने है को अरबी में क्या बोलते हैं? जी? अभी ऊपर लिखे ना हम लोग, देखिए नज़ारा नज़ारा यंज़ुर। अच्छा, एक चीज आपको बोलना है कि ये इसमें आप गौर करे होंगे कि कहीं पे ये थर्ड लेटर पे पेश आ रहा यंज़ुर, नाम सर कहीं पे जो है आपको क्या हो रहा, ये यहाँ पे जबर आया देखिए, जी और कहीं पे क्या आता आपको, जेर आता, जैसे सरक़ा यसरिक़ु। सरक़ा का मतलब होता है चोरी करना, यसरिक़ु मतलब वो चोरी का वो चोरी करता है या करेगा। तस्रीखु ठीक है, तस्रीक़ु का मतलब क्या होगा? तू चोरी करता है या करेगा तू चोरी करता है या करेगा। मैं मैंने क्या मीनिंग होगा? अस्रिखु हाँ, मैं चोरी करूंगा। मैं चोरी करती हूँ या चोरी करूंगा। अच्छा, मैं ये क्यों बोला आपको, ये जो है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से में कुरान पाक में एक जगह जो है आया है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम जब बादशाह बन जाते मिस्र के, तो उनके पास उनके भाया आते, भाया आए तो क्या करते कि वो जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के जो है सगे वालदा के बेटे रहते, खास भाई रहते, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम उनको रोकने के लिए तदबीर क्या करते, उनके सामान में अपना एक जो है कंगन छुपा देते। तो जब वो कंगन जो है उनके सामान से बरामद होता, वो भाया बोलते, क्या बोलते? यस्रिक। यानी चोरी। इनका मतलब होता है अगर, यस्रिक का मतलब उसने चोरी की। फक़द सरक़ा अखुल लहू मिन क़ब्लु। ठीक है, ये एक जो है ये एक हिस्सा है आयत का। एक बार पढ़िए, इन यस्रिक फक़द सरक़ा अखुल लहू मिन क़ब्ल। इसको जो है, इसको आप जो है इमेज ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाम सर इनका मतलब है इफ, यस्रिक का मतलब है चोरी किया है, फकत जो है ये एम्फसाइज करने के लिए आता, मजबूत करने के लिए आता, बेशक के माने में। सरक़ा मतलब चोरी किया, अखुन भाई, लहू उसका, मिन क़ब्लु इससे पहले। अब तर्जुमा क्या होगा बोलिए? तर्जुमा ये होगा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाया बोल रहे हैं कि अगर ये जो बिन्यामीन नाम था उनका,
اگر یہ چوری کیے ہیں تو کوئی جو ہے بڑی بات نہیں ہے، کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، کیونکہ ان سے پہلے بھی جو یوسف تھے انہوں بھی چوری کیے تھے بلکہ. حالانکہ بات کس سے ہو رہی؟ سامنے بھائی ہے اور وہ بادشاہ کے اس میں ہے، تو یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سنا دیے، لیکن انہوں صبر کرے، کوئی اس پہ ریپلائی، کوئی جو ہے مطلب جو ہے ریاکشن نہیں دیے. ان یسرق، اگر اس نے چوری کی ہے، فقد سرق اخ لہو، تو ان کے ایک بھائی نے بھی چوری کی ہے، من قبل، اس سے پہلے. ٹھیک ہے، تو اس کو یاد کر لیجیے. سرقہ یسرقو کا مطلب ہوتا ہے چوری کرنا. اب چلیے ہم آ جاتے ہیں ہمارے آج کے جو ہے حوار کی طرف. آج کا حوار بہت اچھا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ایک بار پڑھوں گا، اس کے بعد انمیوٹ کروں گا، پھر آپ لوگ جو ہے اس کو پڑھیں. نعم سر، نعم. نام سر. تو اس کو میں عربی میں بولوں گا کہ سأقرأ اولا الحوار ثم بعد ذلك یأتی دورکم. دور کا مطلب ہوتا ہے باری، یور ٹرن. یأتی مطلب آنا. اقرأ میں پڑھوں گا، الحوار، الحوار مطلب کنورزیشن. سأقرأ الحوار اولا، سب سے پہلے میں حوار پڑھوں گا. ثم یأتی دورکم، پھر آپ لوگوں کی باری آئے گی. چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. الوحدۃ الثانیۃ، سیکنڈ یونٹ، دوسرا یونٹ. الحوار الثالث، تیسرا مکالمہ، تھرڈ کنورزیشن. انظر واستمع واعد، دیکھو، سنو اور دہراؤ. الدرس السابع، ساتواں سبق. الام، ماں، والدہ. ھذا اذان الفجر، ھذا اذان الفجر. ھذا کا مطلب ہوتا ہے یہ، اذان کا مطلب ہوتا ہے اذان، اور فجر کا مطلب ہوتا ہے فجر. تو یہ اذان الفجری جو ہے، یہ آپ دیکھیں گے فجر، فجری کے رے کو زیر آ رہا. کیوں آ رہا؟ کیونکہ وہ مضاف الیہ ہے. دو الگ الگ ورڈ تھے، ایک تھا اذان، ایک تھا الفجر. یہ دونوں کو ملائے تو ملانے کی وجہ سے یہ مضاف الیہ ہو گئے. اور عربی میں ہم آپ کو بول دیے کہ کسی بھی ورڈ کو صرف دو وجہوں سے زیر آتا، صرف دو ریزن، یا تو وہ مضاف الیہ رہنا یا اس سے پہلے کوئی حرف جر رہنا. تو یہاں پہ کیوں آیا زیر؟ مضاف الیہ ہے. تو اب ترجمہ کیا ہوگا؟ ھذا اذان الفجری، یہ فجر کی اذان ہے. الاب، والد بول رہے ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بلند و بالا ہے، اللہ سب سے بلند و بالا ہے. الاب، والد بول رہے ہیں. این الاولاد، یہ ایک ورڈ ہے دیکھیے، اولاد یہ جمع ہے، اس کا واحد کیا آتا ہے؟ سنگولر، ولدن. الولد، الولد مطلب بچہ، الاولاد مطلب بچے. تو والد صاحب پوچھ رہے ہیں والدہ سے الابو این الاولاد، بچے کہاں ہیں؟ تو اب والدہ کیا کریں، اس کو ایکسپلین کر رہے ہیں کہ کون کون کہاں کہاں ہیں. الام، والدہ کہہ رہے ہیں سعد فی الحمام یتوضأ. سعد ایک نام ہے، فی کا مطلب ہوتا ہے میں. اب حمام کے میم کو جو ہے زیر آیا، دیکھیے زیر کیوں آیا؟ یہ فی کی وجہ سے آیا، فی آنے کی وجہ سے زیر آیا. سعد حمام میں یتوضأ، وضو کر رہے ہیں. سعد حمام میں وضو کر رہے ہیں. اس کے بعد الاب، والد پوچھ رہے ہیں وَأَيْنَ سَعِيدٌ، اور سعید کہاں ہے؟ اینا کا مطلب کہاں، سعیدن کا مطلب سعید. اور میں آپ کو بتلایا تھا کہ اینا کے بعد جو بھی ورڈ آئے گا وہ معرفہ ہونا ضروری ہے. اب سعید چونکہ ایک کیا ہے، پراپر نیم ہے، اسی لیے اس پہ الف لام نہیں ہے. اگر کوئی کامن نیم رہتا تو ہم کو الف لام لگانا پڑتا یا اس کو مضاف الیہ بنانا پڑتا، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. این سعید. الام، والدہ کہہ رہی ہے سعید فی الغرفۃ یقرأ القرآن. یہ سیم اوپر کے جیسا ہے، دیکھیے سعد فی الحمام یتوضأ، سعید فی الغرفۃ کمرے میں. غرفہ کسے کہتے ہیں؟ کمرہ. الغرفۃ. یقرأ، قرأ یقرأ کا مطلب ہوتا ہے پڑھنا، وہ پڑھ رہا ہے. سعید کمرے میں پڑھ رہا ہے. کیا پڑھ رہا ہے؟ القرآن، قرآن کو وہ پڑھ رہا ہے. اب یہاں پہ آپ دیکھیے القرآن میں نون کے اوپر زبر آیا. یہ زبر کیوں آیا معلوم؟ کیونکہ یہ آبجیکٹ ہے. آبجیکٹ کا مطلب کیا ہوتا کہ میرا جو فعل، میرا ایکشن جو ہے اس پہ جاری ہو رہا. آپ کیا پڑھیں، جو بھی چیز کو آپ پڑھیں گے اس کو زبر کے ساتھ بولنا. اگر قرآن کی جگہ کتاب ہوتا تو کتاب کے با کو ہم کیا دیتے تھے؟ بولیے
किताब के बा को हम क्या किताबा बोलते थे, किताबी बोलते थे या किताबू बोलते थे? क्या बोलते थे हम? किताबा। 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 क्यों किताबा। क्यों बोलते थे हम? क्योंकि हमारा एक्शन उस पे जारी हुआ। और एक चीज मैं ऐसे ही आपसे पूछा कि मैं जो है मस्जिद को देखा, तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है बोलिए? मस्जिद। मस्जिद। तो मस्जिद के आखिरी हर्फ को क्या आएगा? जबर। जबर आएगा, जेर नहीं जबर आएगा। क्यों आएगा? ऑब्जेक्ट होने की वजह से। और ऑब्जेक्ट को जो है अरबी में कहते हैं मफऊल। ओके, चलिए उसके बाद है वअइना सईदतु। अब यहाँ पे गोलता है, देखिए फीमेल का नाम है, तो हम आपको पहले ही बोल दिए कि फीमेल के नाम पे जो है तनवीन नहीं आता, एक आध एक्सेप्शन हो सकता है। अइना सईदतु, सईदा कहाँ है? तो माँ कह रही है सईदतु फिल मुसल्ला तुसल्ली। यहाँ पे या के नीचे दो नुक्ते हैं, तो हमारी आवाज नीचे जाएगी, तुसल्ली। यहाँ पे या पे जो है दो नुक्ते नहीं है, तो हम पढ़ेंगे मुसल्ला। मुसल्ला किसे कहते हैं? मुसल्ला जो है उस जगह को कहते हैं जो हम घरों में मस्जिद के लिए मुख्तस कर देते हैं, उसको मुसल्ला कहते हैं। और तुसल्ली जो है, यहाँ पे एक चीज आप अपने नोट्स में इजाफा कीजिए कि तुसल्ली सेम वर्ड मेल के लिए भी आता है सेकेंड पर्सन, और थर्ड पर्सन फीमेल के लिए भी आता है। मैं क्या बोला कि मैं शेयर कर रहा हूँ थेरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पढ़े ना अभी कि युसल्ली जैसे हम ले लेते हैं, युसल्ली का मतलब होता है वो नमाज पढ़ रहा है, वो नमाज पढ़ रहा है या पढ़ेगा, दोनों भी आता। अब इसमें जो है एक ही फॉर्म को हम दो तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तुसल्ली का मतलब क्या बोले हम? आप नमाज पढ़ रहे हो या पढ़ोगे? पढ़ोगे। अब मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि ये सेम वर्ब जो है थर्ड पर्सन फीमेल के लिए भी इस्तेमाल होता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। नाम सर। ठीक है, और पहचानेंगे कैसा आप जो है टेक्स्ट मतलब जो कॉन्टेक्स्ट को देख के आप पहचान लेंगे। वो एक औरत नमाज पढ़ रही है या पढ़ेगी। ठीक है, अब इसी तरह जो है आप मेरे को बोलिए कि यफराहु। यफराहु का मतलब क्या होता? यफराहु का मतलब वो खुश होता है, वो खुश होता है या होएगा? खुश होगा। अब मेरे को बोलना है वो औरत खुश होती है, तो मैं कैसा बोलूंगा? सेम तफराहु। मेरे को बोलना है आप खुश होते हैं मर्द में, तो सेम तफराहु। वो औरत या तू मर्द, दोनों के लिए सेम है ये। मुतकल्लिम का सेगा है। मुतकल्लिम नहीं, ये गायब और हाजिर का सेगा है। तफराहु। ठीक है, तो वापस हम हिबार की तरफ आ जाते हैं। वालदा कह रही है मादा तक़ूलुल उम सईदतु फिल मुसल्ला तुसल्ली। सईदा मुसल्ला में तुसल्ली नमाज पढ़ रही है। चूंकि सईदा थर्ड पर्सन है और फीमेल है, वो मौजूद नहीं है, उसके बारे में बात हो रही है, तो हम कह रहे हैं तुसल्ली। तो मर्द के लिए भी और फीमेल के लिए भी, थर्ड पर्सन और सेकेंड पर्सन दोनों के लिए बराबर है। उसके बाद वालिद पूछ रहे हैं ऐनल मिअतफु या सादू। ऐनल मिअतफु या सादू, ए साद मेरा, ए साद कोट कहाँ है? अल मिअतफु, इसको लिख लीजिए, इसका मतलब होता है कोट। कोट जो हम पहनते हैं वो कोट। अल मिअतफु, एक बार बोलिए। अल मिअतफु। अल मिअतफु। अल मिअतफु। المعطف
अच्छा, अरबी में जो है हम किसी को बुलाना है, उर्दू में कैसा बुलाते हैं अपन? खाली आवाज देते हैं, आइए, आइए, बैठिए, या नाम लेके पुकारते हैं, खालिद, हामिद, सईद, या हमारे पास निक नेम्स रहते हैं, वो बहुत बुरे रहते हैं, उससे पुकारते हैं। अरबी में जो है अगर हमको किसी को आवाज देना है तो हम जो है नाम से पहले या लगाते हैं, ठीक है। और नाम के बाद जो है अगर तनवीन रही समझिए तो हम तनवीन को हटा के पेज दे देते हैं, या सईद, या सादू, ठीक है। अब खलीलुन किसी का नाम हो सकता है, खलीलुन अरबी में अगर या लगा दिए तो क्या हो जाएगा वो? या खलील। हामिदुन नाम होता है, या लगा दिए तो क्या हो जाएगा? या हामिद। या हामिदु। तो अब हम जो है नतीजा क्या निकाले कि या आने के बाद जो है अगर हम किसी को आवाज दे रहे हैं तो तनवीन के साथ आवाज नहीं देना जी, ठीक है। अब जो है उस्ताजुन है, अगर आपको मेरे को या उस्ताद, ठीक है। या उस्ताद दी नहीं इस्तेमाल कर सकते? बिल्कुल कर सकते, मैं वही बोलने वाला था। अब आपको जो ऑप्शन है कि आप या उस्तादी, थोड़ा और अपनाइयत दिखती है, या उस्तादी का मतलब माय टीचर, या उस्तादी दाल के साथ, दाल नहीं आता, लाल आता अरबी में, इसको याद रखिए, ठीक है। चलिए, नाम उस्ताद। अइन अल मुअतफू या सादू, वेयर इज द कोट? साद, वेयर इज द कोट? साद बोल रहे हैं हादा हुवल मुअतफू या वालिदी, अब्बा जान ये रहा कोट, हादा हुआ। आप जवाब कैसा देंगे? हादा हुआ, ये रहा कोट, ठीक है। हादा हुवल मुअतफू, अगर मुअतफ में जो है गोलता है क्या? नहीं है ना, तो मतलब क्या है, वो मुज़क्कर है या मुअन्नस है? मुज़क्कर है, इसीलिए जो है हादा इस्तेमाल कर रहे हैं और हुआ इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हाज़िही हिया इस्तेमाल होता है, हाज़िही हिया इस्तेमाल होता था, आगे आ रहा देखिए। अब वाले आइन व आइनन नज़्ज़ारतु या सईदु, नज़्ज़ारा कहते हैं ऐनक को, स्पेक्स को। व आइनन नज़्ज़ारतु या सईदु, सईद चश्मा कहाँ है, ठीक है। तो सईद जवाब दे रहे हैं हाज़िही हियन नज़्ज़ारतु या वालिदी, अब्बा जान, बाबा जान, जो भी आप कहना चाहें, ये रहा, ये रही ऐनक, हाज़िही हिया। ये रही के लिए जो है हम अरबी में क्या बोलेंगे? अगर मुज़क्कर है तो हाज़ा हुआ, मुअन्नस है तो हाज़ा हिया। मैं आपसे पूछा आइनल क़लमु या तालिबी, के मेरे स्टूडेंट कलम कहाँ है, तो आप क्या बोलेंगे? कलम तो मुज़क्कर है ना? हाज़ा हुआ क़लमुन या उस्ताज़ी, हाज़ा हुवल क़लम, ऐसा बोलेंगे। अच्छा, मैं पूछा कि आइनल किताबु, हाज़ा हुवल किताब, हाज़ा हुवल किताबु। मैं पूछा आइनल हासूब, हासूब कहते हैं कंप्यूटर को, कंप्यूटर, हाज़ा हुवल हासूब, हाज़ा हुआ का तर्जमा क्या करेंगे आप? ये रहा, दिस इज, इट इज, ठीक है। आइनल उस्तादु बोले तो हाज़ा हुवल उस्तादु बोल सकते हैं आप। मैं इसी तरह पूछा आपसे कि आइनल वलदु, हाज़ा हुवल वलदु, आप बोलेंगे हाज़ा हुवल वलदु। अच्छा, बच्ची के लिए क्या बोलेंगे? आइनल हाज़िही हियल वलदी, नहीं, लड़की के लिए कहते हैं बिंतु। बोलिए अब क्या जवाब देंगे? हाज़िही अल बिंतु, हाज़िही हियल बिंतु। तो चलिए हिवार में फिर लौटते हैं, नऊदु इलल हिवार मर्रतन सानियतन। व अयन नज़्ज़ारतु या सईदु, चश्मा कहाँ है सईद? हाज़िही हिय नज़्ज़ारतु या वालिदी, अब्बा जान ये रहा चश्मा। तो वालिद साहब बोल रहे हैं हैया बिना इलल मस्जिदी, चलो मस्जिद को चलते हैं। हैया बिना का मतलब क्या होता है
کہ کسی بھی کام کے لیے آپ مطلب جو ہے آفر کرتے ہیں اس وقت کہتے ہیں حیا بینا. میں آپ سے پوچھا کہ میں آپ کو بولا کہ حیا بینا الی المدرستی، کیا مطلب ہوگا؟ چلو مدرسے چلو کو چلیے. چلو مدرسے کو چلے. لیٹس گو ٹو دا مدرسہ. حیا بینا الی المیدانی، میدان کہتے ہیں گراؤنڈ کو. میدان کو. حیا بینا عربی میں بولیے حیا بینا الی المسجدی. حیا بنا الی المسجد. آؤ چلو مسجد. عربی بولیے پہلے. حیا بینا الی المسجد. حیا بنا الی المسجد. حیا بنا الی المسجد. حیا بنا الی المسجد. اب جواب کیا دیں گے؟ حیا بینا. حیا بنا چلیے. چلیے میں پوچھ رہا ہوں، چلو چلتے ہیں، آپ جواب دیں گے. چلیے حیا بینا. چلیے. اس کو کون پڑھیں گے؟ میں یقرأ منکم. استاد میں پڑھوں. چلیے پہلے پوروں کو میوٹ کر دیتا ہوں میں. ہاں اب بولیے میں یقرأ منکم. مسکان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تفضل. الوحدۃ الثانیۃ. الثانیۃ الحوار الثالث انظر واستمع واعد. الدرس السابع. الدرس السابع 7th lesson. هذا اذان الفجر. یہ فجر کی اذان ہے. الاب اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ بڑا ہے اللہ بڑا ہے. اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے. الابو این الاولاد. بچے کہاں ہیں؟ الام سعد فی الحمام یتوضأ. سعد حمام میں ہے، وضو کر رہا ہے. سعد حمام میں وضو کر رہا ہے، یہ ایک ہی سینٹنس ہے. جی سعد حمام میں وضو کر رہا ہے. الابو و این سعید. سعید کہاں ہے؟ الام سعید فی الغرفۃ یقرأ القرآن. سعد کمرے میں قرآن پڑھ رہا ہے. احسنتی. الابو و این سعیدۃ. اور سعیدہ کہاں ہے؟ الام سعید فی المصلی. سعیدۃ فی المصلی. سعیدۃ فی المصلی تصلی. سعیدۃ فی المصلی تصلی. سعیدۃ فی المصلی تصلی. اب یہ صاد جو ہے نا تھوڑا موٹا ہونا. سعیدۃ فی المصلی تصلی. جی سر. سعادۃ فی المصلی و تصلی. صاد اگر آپ یہاں پہ پریکٹس کریں گے تو قرآن سے ہی پڑھ سکیں گے. تصلی. تصلی. جی ہاں چلیے. سعد سعیدہ مصلی میں نماز گاہ میں. سعیدہ نماز گاہ میں نماز پڑھ رہی ہے. الابو این معطف یا سعید. این المعطف یا سعید. کوٹ کہاں ہے اے سعد؟ سعد ھذا ھو المعطف یا والدی. یہ یہاں ہے کوڈ. نہیں یہ رہا کوٹ. یہ رہا کوڈ. یہ رہا کوٹ. یہ رہا کوڈ اے میرے والد. الابو و این
وأين النظارة يا سعيد نظارة نظارة يا سعيد اور چشمہ کہاں ہے؟ چشمہ کہاں ہے اے سعید؟ سعید هذه هي النظارة یا والدی. ضا بھی موٹا پڑھنا صاد کے جیسا. جی یہ رہا چشمہ اے میرے والد. الابو حیا بنا الی المسجد، چلو میرے ساتھ مسجد کی طرف. نہیں چلو مسجد کو چلتے ہیں. چلو مسجد کو چلتے ہیں. سعید و سعد و سعید حیا بنا. ماشاء اللہ جزاک اللہ. تو ہمارا ٹائم یہاں پہ ختم ہوا ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو آج کا لیسن سمجھ میں آیا ہوگا. نام اور 2 مظاہرے آنا ہے نا سر؟ ہاں اور 2 آنا ہے، نیکسٹ میں آ جاتے ہیں آپ کو. میں پھر سے بول رہا ہوں، دیکھیے آج جو ہم سیکھے، ایک ہم یہ سیکھے کہ فرحتو کا مطلب ہوتا ہے میں خوش ہوا، میں خوش ہوں. I became happy. I became happy میل اور فیمیل. اور ٹھیک ہے we became happy میل فیمیل. کثیرن فریحتا I am extremely happy. I'm extremely happy. دوسرا ہم سیکھے، یہ تو ماضی کی گردان ہو گئی، پوری ماضی کی گردان ہم سیکھ لیے الحمدللہ. اور میرے کو امید ہے کہ آپ لوگ اس کا اسکرین شاٹ بھی لے لیے ہوں گے. یہ نام سر تین والا جو ہے نام میرے کو آپ سے امید ہے، انا اتوقع منکم ان تكتبوا هذا التصریف من الصيغ المختلفہ. اب میرے کو امید ہے کہ آپ الگ طریقوں سے آپ یہ پورے 14 صیغے کل لکھ کے لائیں گے انشاءاللہ. دوسرا لاسٹ جو ہم سیکھے ہیں، 1 سیکنڈ میں لوں گا آپ لوگوں کا، اور مضارع ہے یہ، اور یا آنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 3rd person singular male. وہ وضو کر رہا ہے یا کرے گا. اس کے بعد دو جو ہے آپشن ہمارے استاد وہ مسلح آپ نے بتایا نا کہ نماز پڑھنے کی جگہ، میرا جو عرب ورلڈ میں ایکسپیرینس ہے وہ شاید جانماز، جسے ہم جانماز کہتے ہیں، وہ شاید اسے مسلح کہتے ہیں نا. وہ اس کو بھی کیوں کہتے ہیں بولیے آپ؟ کسی دوسری چیز کو کیوں نہیں کہتے؟ نماز کی جگہ اس پہ نماز پڑھتے اس لیے. باہر جو ہے یہاں پہ بھی ہے، تھوڑے مساجد میں مصلی النساء بول کے رہتا ہے. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ جگہ جو عورتوں کی نماز گاہ ہے. جی ٹھیک ہے جی. نام دیکھیے میں اس میں فرق لکھ دیا کہ تتوضؤ میں وہ احتمال ہے تو وضو کر رہا ہے اور وہ وضو کر رہی ہے، دونوں بھی آتا ہے. اور اگر میں حمزہ سے لکھ دوں تو اس کا مطلب ہوتا ہے میں، چاہے میل ہو یا فیمیل. یار آپ کی آواز سلو آ رہی بہت. میں وضو کر رہا ہوں. There is some disturbance in the background, sir. بالکل. اب جو ہے مجبور ہوں میوٹ نہیں کر سکتا ہوں کیونکہ ہماری کلاس کا ٹائم ختم ہو رہا. اینی ہاؤ تو یہ جو ہے ہمارا آج کی سمری ہے کہ ہم یہ فرحتو فرحنا یہ 2 چیزیں سیکھے. یتوضؤ وہ وضو کر رہا ہے یا کرے گا، تتوضؤ وہ وضو کر رہی ہے عورت یا کرے گی، تتوضؤ اگین تو وضو کر رہا ہے یا کرے گا، سیم صیغہ رہے گا، چینج نہیں ہوگا. اور اتوضؤ میں وضو کر رہا ہوں یا کروں گا، میں کر رہی ہوں یا کروں گی، میل فیمیل دونوں کے لیے برابر ہے. ٹھیک ہے نام سر. تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے ہمارا بھی. میں کیا بولتے ہیں
نقتفی سلامہ مع السلامة. اليوم نکتفی بهذا بهذا القدر اليوم نكتفي بهذا القدر اليوم نلتقي غدا إن شاء الله إن شاء الله مع السلامة مع السلامة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ جزاكم الله خير السلام عليكم ورحمة الله. سر اردو کلاس ہو گئی؟ اردو جزاک اللہ خیر. ابھی میں جو ہے میرے پاس اپڈیٹ نہیں ہے. میں ابھی جو ہے وہ واٹس ایپ آپ کو کر رہے ہیں ہم لوگ. ابھی آپ 5 منٹ دیجیے ہمیں. جزاک اللہ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام علیکم. وعلیکم السلام علیکم. السلام علیکم سر. جزاک اللہ خیر.